All right, turn your Bible to the book of Luke, Gospel of Luke. मैं अपने बाइबल को खोलिए लूका लिखे सुसमाचार Gospel of Luke chapter 17 today. लूका लिखे सुसमाचार अध्याय 17 में आप खोलिए And we are going to see from verse number 11 onwards. और वचन 11 से हम देखेंगे। Luke chapter 17 verse number 11 onwards. लूका लिखे सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से हम देखेंगे। God is good. All the time. I'm not going to start until I hear everybody say, okay? God is good All the time. and all the time. God is good. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Luke chapter 17 verse number 11 onwards. We are going to see a tremendous story, a reality that is happening in this chapter. और इस समय हम एक सच्चाई घटना को इस समय देखने जा रहे हैं जो वचन में है इस समय। The Bible says that everybody here has some kind of leprosy if you are not saved. बाइबल हमें बताती है अगर आपने उद्धार नहीं पाया सबों के पास उस प्रकार का कुष्ठ रोग है आप सभी के जीवन में। If you are saved, then you are being healed from leprosy. अगर आप उद्धार पाए हैं तो आप कुष्ठ रोग से आपने चंगाई को पाई है। Leprosy is a very dirty sickness disease that was prevalent in those days. और क्या है जो कुष्ठ रोग है लोगों से नफरत किया जाने वाला एक ऐसा बीमारी है जो लोग नफरत करते हैं। Now leprosy is not totally wiped out from the world. और जो कुष्ठ रोग है इस संसार से हटाने वाला एक ऐसा रोग नहीं है। Few years ago I was in Tamil Nadu. और कुछ साल पहले मैं तमिलनाडु में था। And there is one place called Chengalpet. और एक जगह है जहाँ पे चेन्नपट करके एक जगह है। And from there we drew to another place. The pastor said there is a kind of a camp where people are kept and they are all lepers. और पास्टर से मैं होके गाड़ी में से गया और पास्टर ने कहा कि वहाँ पर ऐसा एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे कुष्ठ रोग के बीमार लोग हैं। And he said very few people just go there. और उन्होंने कहा कि बहुत से कम लोग वहाँ पर जाते हैं। And I asked that pastor, can you take me to that place? I want to see what it is all about. और मैंने उस पास्टर को कहा कि क्या मुझे आप उस जगहों में लेके जा सकते हैं मैं वहाँ पर जाके देखना चाहता हूँ। And so the pastor sent a man of his church, a young man, to take me around. और पास्टर ने एक जवान आदमी को मेरे पास भेजा ताकि मुझे वो वहाँ पर लेके जा सके। So we sat on the bike and we rode through that place. तो हम बाइक में बैठकर हमने उस जगहों में हमने जाना शुरू किया। And as I went through, I saw these people sitting outside small houses in that camp. और जिस प्रकार से मैं उस रोड से होकर जा रहा था तभी मैंने देखा कि बहुत सारे छोटे-छोटे घर में बनाकर वहाँ पर वो रह रहे थे तभी। And there we see that their fingers were all fallen off. और वहाँ पे हमने देखा कि उन लोगों के जो उंगली है वो नहीं है उन लोगों का उंगली। Some of the the fingers are gone, toes are gone. और बहुत से पाँव के जो उंगली वगैरह है सब गया हुआ है। Their wounds are all watery and sticky. और उन लोगों के जो घाव वगैरह है वो पानी है। It's almost like the skin peeling off. और ऐसा लगता है कि जो उनका जो चमड़ा है वो निकलने वाला है। It is a very nasty disease. और बहुत ही गंदा एक बीमार है। And even today, that such kind of things are prevalent in our country. और उसी प्रकार का जो चीज है हमारे इंडिया में हमें देखने के लिए मिलता है। And so I was able to see this thing. और मैंने उन सब चीजों को मैंने देखने के लिए मुझे मिला। While our country is flooding the money to go to the moon or to the Mars, the disease in our country is still prevalent. जब हम देखते हैं लोग पैसा उन लोग खर्चा कर रहे हैं चांद में जाने के लिए लेकिन हमारे जो देश में है बीमार अभी भी बहुत सारे हैं। But the Bible talks about leprosy in connection with the sin that you and I have. लेकिन बाइबल हमें बताती है ये जो कुष्ठ रोग है जो हमारे अंदर जो बीमार है पाप उसके बारे में हमें बताते हैं। Leprosy is a type of sin nature. और जो कुष्ठ रोग है पाप का चरित्र जैसा है। And this sin, this leprosy puts you out of the camp. और ये जो कुष्ठ रोग है आपको इस जगह से आपको बाहर लेके जा सकता है। If you have leprosy, then you cannot function in the midst of other people who are with good health. अगर आपके पास कुष्ठ रोग है तब जो अच्छे लोग हैं उन लोगों के साथ मिले जुले नहीं रह सकते हैं। Because of leprosy, you will be put out of the camp. और कुष्ठ रोग की वजह से आपको बाहर रखा जाएगा। You will be put in a separate area. और अलग एरिया में आपको रखा जाएगा। Until and unless you get right, you are completely cured. And then you will be brought out inside. जब तक ना पूरी तरीके से आप ठीक हो जाए आपको अंदर नहीं लेके आ सकते हैं। There is a lot of false doctrines going around today. हम आज देखते हैं बहुत सारी गलत शिक्षाएं आज चल रही हैं And these kind of wrong doctrines are preached
preached and proclaimed by some smart Baptist preachers. और बहुत सारे ऐसे स्मार्ट बैप्टिस्ट के प्रचारक हैं जो इस गलत शिक्षाओं को इस समय फैला रहे हैं। And because of some preaching that's in, many people are taking this off, and many people believe that what this group of people said might be true. और शायद बहुत से लोग जो बैप्टिस्ट के जो प्रचार कर रहे हैं, बहुत से लोगों को लग रहा है कि हाँ इन लोग सत्य प्रचार कर रहे हैं। Now I am a Baptist. मैं बैप्टिस्ट हूँ। And I was not born a Baptist. मैं बैप्टिस्ट के वहाँ पर मैंने जन्म नहीं लिया। I am a Baptist by conviction. लेकिन मैं कन्विक्शन के अनुसार मैं बैप्टिस्ट हूँ। And that's why our church is Grace and Truth Baptist Church. इसलिए हमारा जो कलीसिया है ग्रेस एंड ट्रूथ बैप्टिस्ट चर्च है। A Baptist is someone who believes the Bible is the final authority. और बैप्टिस्ट ऐसे लोग हैं जो बाइबल को उन लोग अपना अंतिम अधिकार मानते हैं। And to take more further, the King James Bible is the perfect, preserved, without any error. It is the perfect Word of God. लोग मानते हैं कि किंग जेम्स जो बाइबल है बिना कोई गंदगी के बिना कोई खराब के बाइबल ये जो है पूरा शुद्ध है। The Word of God is the King James Bible for us और today. परमेश्वर की वचन हमारे लिए किंग जेम्स बाइबल है। And so I'm a Baptist because of my conviction. और मैं बैप्टिस्ट हूँ आज मेरे कन्विक्शन की वजह से। But even in the midst of this thing, there are some people that will proclaim false doctrines. लेकिन इन सब चीजों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत शिक्षाओं को लोग फैलाते हैं। You see, the Bible never said that Jesus Christ came only for the Jews. बाइबल ने कभी नहीं कहा कि जो यीशु मसीह केवल यहूदी लोगों के लिए आया है। The Bible said that he was sent to the Jews. और लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उसको यहूदी लोगों के लिए भेजा गया था। But Jesus nowhere ever said, I am come only for the Jewish people. लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैंने केवल यहूदी लोगों के लिए आया हूँ। He came for the Jew. वो यहूदी लोगों के लिए आया। But he did not come only for the Jew. लेकिन वो केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं आया है। If I go to the market, Mapsa market, अगर मैं बाजार को जाता हूँ माफसा बाजार को, when I say I'm going to the market, जब मैं कहता हूँ कि मैं बाजार को जा रहा हूँ, that doesn't mean I will be only going and doing my market work. इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल मार्केटिंग का काम मैं वहाँ पर करूँगा। By going to market, जब मैं बाजार को जाऊँगा, I will also do other things. और मैं बाकी सब चीजों को भी मैं करूँगा। So just because I say I'm going to the market, मैंने जो कहा कि मैं बाजार को जाऊंगा, doesn't mean I will not talk to anybody. इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगा। Doesn't mean that I will stop and go to the cafe and have a tea and a snack. इसका मतलब ये नहीं कि मैं जहाँ पर जाकर चाय वगैरह नहीं पीऊं। Doesn't mean that I will only buy vegetables and food and not my clothes. इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल खाना वगैरह मैं खरीदूंगा, अपना कपड़े नहीं खरीदूंगा। I'm going to the market, but I will also be doing many other things. मैं बाजार जा रहा हूँ लेकिन मैं बाकी सारी चीजों को मैं नहीं कर रहा हूँ वहाँ पर। Jesus came to the Jew, यीशु ने यहूदी लोगों के लिए आया, but he did not come only for the Jew. लेकिन वो केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं आया The है। Bible doesn't say he came only for the Jew. बाइबल नहीं कहता कि यीशु केवल यहूदी लोगों के लिए आया So है। a lot of people say that Jesus came only for the Jew and not for the Gentiles. बहुत से लोग कहते हैं यीशु केवल यहूदी लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं आया If है। you take every miracles of the Lord Jesus अगर Christ, यीशु के हर एक चमत्कार को लेते हैं, you will see that he did it among the Gentiles. आप देखेंगे कि वो अन्य जातियों के बीच में वो चमत्कार को कर रहे हैं। You will see that he came to the Jew. आप देखेंगे कि उन लोग यहूदी लोगों के पास आया, Very few people who trusted him. और बहुत से कम लोगों ने यीशु के ऊपर But विश्वास there किया। were many Gentiles who trusted the Lord Jesus लेकिन ऐसे Christ. बहुत से अन्य जाति लोग हैं जो यीशु मसीह को विश्वास किया, He goes to Samaria. और वो समरिया को जाता है, He sits at the well. और वो कुआं में बैठ जाता That's है। not a Jewish woman. और वो यहूदी एक स्त्री नहीं है, That's a Samaritan और वो woman. समरिया की एक स्त्री That's a Gentile. और वो अन्य जाति थी। And the Lord preaches the gospel to her. और यीशु मसीह उसको सुसमाचार को सुनाता She है, gets saved. और वो उद्धार को पाती है, She goes into the city. और वो उस गांव में जाती है, She gets all the people of the city. और पूरे गांव के लोगों को वो बाहर लेके आती And है। the Bible says the whole city trusted the Lord बाइबल Jesus. बताते हैं कि पूरे जो गांव है उन लोग यीशु के ऊपर विश्वास कर जाते हैं। There's a woman who had 12 years of issues of blood. और एक स्त्री थी जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का बीमार थी, And the Bible says that she got healed. और बाइबल कहती है कि उसको वो चमत्कार को उसको प्राप्त हुआ। There's another woman who came and asked Jesus to heal her daughter. और ऐसे एक स्त्री आई जो अपनी कन्या को वो चमत्कार करने के लिए यीशु से The कहती Lord है, said, no, I cannot throw the bread to the dogs. और यीशु ने कहा कि मैं अपना जो रोटी है उसको मैं कुत्तों को नहीं दे सकता But हूँ। Jesus said, but oh Lord, the dogs eat the crumbs fallen from the table also. और उस स्त्री ने कहा कि जो टेबल से भी कुत्ते लोग खाते हैं। And the Lord says, wow, you had great faith. और यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास बहुत ही अद्भुत विश्वास है, Oh, your child is healed. जाओ तुम्हारी जो कन्या है वो चमत्कार पा चुके हैं। He did not do miracles only to the Jews. और वो केवल यहूदी लोगों के लिए चमत्कार को नहीं किया, He did miracle also to the Gentiles. लेकिन अन्य जातियों के लिए भी उसने चमत्कार को किया। He did not only save the और Jews, केवल उसने यहूदी लोगों को नहीं बचाया, he also saved the Gentiles. लेकिन अन्य जातियों को भी उसने बचाया। When we see last Sunday, we saw about
the woman who came with an alabaster box. जहाँ पिछले हफ्ते को हमने देखा कि संगमरमर के पात्र के साथ वो स्त्री आती है यीशु के पास, And we see that that lady was not just a Jew, और हम देखते हैं कि वो ये स्त्री जो थी वो केवल यहूदी नहीं थी, or basically in the last Sunday when we see that woman who came with an alabaster box, हमने पिछले हफ्ते को हमने देखे जो स्त्री संगमरमर के पात्र के साथ जो आई थी, we see that woman was not saved by keeping the law, हमने देखा कि वो जो स्त्री है व्यवस्था को पालन करने के द्वारा उद्धार नहीं पाई थी, but that woman was saved because of a faith in Christ. लेकिन वो जो स्त्री है यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा उद्धार को पाई है। We see that people are getting saved by putting their faith in Jesus हम Christ. देखते हैं लोग जो है विश्वास को रखने के द्वारा लोग उद्धार को पाते हैं। Now I don't believe that people were saved by law before Christ. मैं विश्वास नहीं करता यीशु आने से पहले लोग व्यवस्था के द्वारा उद्धार पा रहे थे। I believe what the Bible says. मैं विश्वास करता जो बाइबल कहती The है, Bible never said that you are saved by your law, बाइबल के कभी हमें नहीं कहती कि हम व्यवस्था के द्वारा हम उद्धार पाते but हैं, the Bible says the just shall live by faith. लेकिन बाइबल में बताया गया कि हमें जो धर्मी जो है विश्वास से जीवित रहेगा। The Bible says you are justified by faith. बाइबल हमें बता दे कि तुम विश्वास से तुम धर्मी ठहरे गए हैं। Jesus said your faith has healed you. बाइबल बता दे कि तुम्हारा जो विश्वास है तुम्हें चंगाई को दिया है। Jesus said your faith has saved you. यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचाया है। Paul says no man can be justified by keeping law. और उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा व्यवस्था के पालन के द्वारा। The Bible says all are justified by faith if you put your faith in Christ. बाइबल बताती है कि सभी लोगों ने धर्मी ठहरा विश्वास को रखने के द्वारा। The New Testament does not only say you are saved, the just shall live by faith. नया नियम केवल हमें नहीं कहता कि तुम केवल धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। The just shall live by faith is a quotation from the Old Testament. हम जो देखते हैं जो ये वचन है पुराने नियम से लिया गया है। So people get saved only by faith in God of the Bible. तो जो लोग हैं केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास को करने के द्वारा लोग उद्धार को पाते हैं। Secondly, the Lord Jesus Christ did not come only for the Jews. और दूसरी जो बात है यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए नहीं आया है। The Bible never said that. बाइबल कभी भी नहीं कहता इसके बारे The में। problem is we just listen and believe whatever man says. समस्या क्या है, हम केवल सुनते हैं और वही हम बिलीव कर जाते हैं। We never ask the question. हम कभी प्रश्नों को नहीं पूछते हैं। The Bible never says Jesus came only for the Jew. बाइबल में कभी नहीं कहा कि यीशु केवल यहूदियों के लिए आया है। While he came to the Jew, क्यों उसने यहूदी के पास आया? he also saved the Gentiles और also. जब यीशु ने आया तब यीशु ने अन्य जातियों को भी उद्धार को दिया है। Jesus goes to Gentiles territory. और यीशु मसीह अन्य जातियों के पास जाते हैं। You see about the story about the people, the two men who were possessed by the evil spirit. आप देखते हैं ऐसे दो व्यक्ति थे जिसके पास बुरी आत्माएं थी। And then the Lord goes there and the evil spirit says, send us to the pigs. और यीशु वहां पर जाते हैं और जो बुरी आत्माएं उन लोग कहते हैं कि हमें सूअर के पास भेजो। That's a Gentile territory. और हम देखते हैं वो जो अन्य जाति के व्यक्ति The Jews never had pigs in their lives. और जो यहूदी लोग उन लोग कभी सूअर नहीं खाते हैं, The Gentiles have pigs. लेकिन जो अन्य जाति लोग सूअर खाते हैं। And Jesus entered into the Gentile territory, set the people free, and give them salvation. और यीशु मसीह यहूदियों के पास जाकर उन लोगों को उद्धार को देते हैं, आजादी को देते हैं। Everybody born in this world is born with leprosy in their heart. और जो कोई संसार में जन्म लेते हैं कुष्ठ रोग के द्वारा वो जन्म लेते हैं। Leprosy is a type of sin. और जब कुष्ठ रोग एक पाप के जैसा The है। Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. अगर हमें बता दें कि सभी लोगों ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। You were a sinner when you were born. आप जब जन्म हुए थे तभी आप पापी थे। If you die in sin, you spend eternity in hell. अगर आप पाप में मरते हैं आप नरक में हमेशा हमेशा बिताएंगे। That's the very reason why God is calling you today. Come out and trust in me. इसलिए यीशु आपसे कह रहा है कि तुम बाहर आ जाओ और मेरे ऊपर विश्वास करो। That's the reason why the Lord is saying, I came from heaven. I'm the one true God. इसलिए प्रभु कह रहा है मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं सत्य परमेश्वर हूँ। And I became man just like you without sin, और but बिना पाप से मैं तुम्हारे जैसा मनुष्य बना। and I shed my blood on the cross. और क्रूस में मैंने अपने लहू को बहाया। And I died on the cross for you. और मैंने क्रूस में तुम्हारे पाप के लिए मरा। I was buried. मुझे गाड़ा गया। And I rose again on the third मैंने day. वापस जीवित उठा। And the Lord is saying, और यीशु कह रहा है if you come to me, अगर तुम मेरे पास you आओगे, put your faith upon अगर me, तुम मेरे विश्वास को रखोगे, I will save you by my मैं grace. तुम्हें अपने अनुग्रह से बचाऊंगा। I will save you by my मेरे faith. विश्वास से तुम्हें मैं बचाऊंगा। I will wash away your sin with my precious blood. तुम्हारे पाप को लहू से मैं शुद्ध कर दूंगा। And as I rose again, और जब जिससे मैंने जीवित हुआ दोबारा से, I will raise you up. मैं तुम्हें उठाऊंगा। And I will give you eternal मैं life. तुम्हें जीवन को दूंगा। That is the gospel, dear और friend. वही सुसमाचार है मेरे प्रिय। Everybody is a leper. सभी लोग कुष्ठ रोगी हैं Everybody is born in sin. और सभी लोग पाप में जन्म लिए But when हैं। you come to Jesus जब Christ, यीशु के पास आते हैं, your leprosy will be washed away. हमारे कुष्ठ रोग शुद्ध होंगे You'll be set free.
और आपको आजादी मिलेगा। Your sins will be washed away by the precious blood of Christ. यीशु मसीह की लहू से तुम्हारा पाप शुद्ध हो जाएंगे। The Lord is calling anybody with a leprosy today. और यीशु मसीह सबों को आज बुला रहे हैं। Whatever your leprosy is in your sin today, in your heart, तुम्हारे जीवन तुम्हारे दिल में जो कुछ भी कुष्ठ रोग है, the Lord will set you free and make you clean. और यीशु मसीह आजाद करेगा, आपको शुद्ध करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Give glory to the Lord right now. इसमें प्रभु को महिमा दे सभी लोग। He is the one and only one who can wash away your sin. और वही केवल एकमात्र है जो आपकी पापों को शुद्ध कर सकता The है। water in the great river does not wash your sin. और जो पानी है आपकी पाप को शुद्ध नहीं करता है। The sea in the Arabian Sea does not wash away your sin. समुद्र के पानी भी आपके पाप को शुद्ध नहीं कर सकता Your है। good works does not wash away your sin. आपके अच्छे कर्म आपकी पाप को शुद्ध नहीं कर सकता Your है। donations does not wash away your sin. और आपकी जो धर्म है वो आपकी पाप को शुद्ध नहीं कर सकता But it है। is only the precious blood of Jesus Christ that cleanses your लेकिन sin. केवल यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से आपकी पाप शुद्ध होता है। And here there were some people with leprosy. और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो कुष्ठ रोगी When थे। you read the verse number 11, जब वचन 11 को पढ़ते हैं, the Bible says, बाइबल हमें बताती है, and it came to pass और ऐसा हुआ as he went to Jerusalem कि वो जब यरूशलेम में जाते हुए, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. और लिखा है समरिया और गलील के बीच से होकर वो जा रहा था। Now the Lord wants to go to Jerusalem. और यीशु मसीह यरूशलेम को जाना चाहते And थे। as he wants to go to और Jerusalem, जैसे वो जाना चाहते यरूशलेम को, you know what the Lord is doing? क्या आपको पता है यीशु क्या कर रहे हैं यहाँ पर? Between Samaria and Galilee there is a road और समरिया और गलील के बीच में एक रोड है, to रास्ता go to है, Jerusalem. और वो यरूशलेम को The जाता Lord है। Jesus is going through that path. और वो यीशु मसीह उस रास्ते से होकर गुजर के जाता In है। that path you can see a lot of people who were thrown out of the camp. और आप देखेंगे कि उस रास्ते में बहुत से लोगों को फेंका गया है उस टेंट से। There were people with leprosy on that road. और उस रोड में बहुत से ऐसे लोग थे जो कुष्ठ रोगी थे। And that is exactly what we read. और वही हम जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, In verse number 12, वचन 12 में the Bible says, बाइबल कहती है, and as he entered into a certain village, लिखा है किसी गांव में वो प्रवेश करते समय there met him 10 men that were lepers which stood afar off. उसे 10 कोढ़ी मिले Who stood far off. जो दूर खड़े थे। You see, when people were with leprosy, they were thrown out of their village. आप देखते हैं जब लोग कुष्ठ रोगी थे, लोगों को बाहर निकाला गया था गांव And they से। were put far away from that particular locality where people live. और उस जगहों से उन लोगों को, उस कुष्ठ रोगी लोगों को बाहर रखा गया था। In a separate camp. और अलग जगहों में उन लोगों को रखा गया था। And so Jesus, as he entered, he sees these 10 lepers who had stood far away. और यीशु मसीह जब जाते हैं वहां पर, यीशु मसीह देखते हैं कि 10 कुष्ठ रोगी लोग थे वहां पर। That's what the Bible says. For all have sinned and come short of the glory of और वही God. बाइबल कहता है कि सभी लोगों ने प्रभु के विरुद्ध पाप किए हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। Because of sin, we are all far away if we are not saved today. अगर आज हम उद्धार नहीं पाए तो हम पाप की वजह से हम प्रभु से दूर हैं। I thank God that when I was far away, He came and saved me. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जब मैं दूर था प्रभु ने आकर मुझे बचाया। And I was far away and He snatched me out of the mighty clay of sin. जब मैं दूर था प्रभु ने मुझे कीचड़ से मुझे बाहर निकाला है। The mighty clay of sin. और जो कीचड़ की जो पाप है उससे मुझे निकाला है। And the Lord washed me with His precious blood. और यीशु ने अपने लहू से मुझे शुद्ध किया है। Saved me by His grace. और अपने अनुग्रह से मुझे बचाया My है। dear friend, the Bible मेरे says प्रिय बाइबल बताती है that all have sinned and come short of the glory of सभी God. लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और प्रभु की महिमा से रहित हुए हैं। Which means short of the glory of God means far away from God. परमेश्वर की महिमा से रहित मतलब हम प्रभु से दूर हैं। No man can be in the presence of God with his sin. अपने पाप को लेकर कोई भी प्रभु की उपस्थिति में नहीं रह सकता है। Because of sin we are far away. और पाप की वजह से हम प्रभु से दूर हैं। If you do not know who Jesus Christ is, अगर आपको नहीं मालूम कि यीशु कौन है, if you're not sure of your salvation, अगर आपके उद्धार को लेकर आप निश्चित नहीं if हैं, you're not sure where you'll go when you अगर die, आपको पता नहीं मरने के बाद कहाँ जाएंगे, then you're far away from God. तो आप प्रभु से बहुत दूर हैं। The Lord has come to your village today. प्रभु ने आज आपके गांव में आया है। The Lord is meeting you today through this message. और आज ये संदेश यीशु मसीह आपसे मिल रहा है। And as you stand far away from God today, आज प्रभु से आप जब दूर खड़े रहते हैं, I hope you will run to Him today before this message gets over. आशा करता हूँ ये संदेश खत्म होने से पहले प्रभु के आप और भागेंगे, पास आएंगे। प्रभु की और आप जाएंगे, पास करीब जाएंगे। Verse number 13. और वचन 13 में, And they lifted up their voices and said, और लिखा है उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, Jesus, हे यीशु, Master, हे प्रभु,
have mercy on us. हमारे ऊपर दया कर। Hallelujah. हालेलुया। We all need the mercy of God, dear friend. हम सभी को प्रभु की दया की जरूरत है मेरे प्रियो। No matter what dispensation you are, you need mercy of God. चाहे आप कौन सी भी जगह में हो, लेकिन प्रभु की दया आपको जरूरत है। You may be in the Old Testament. शायद पुराने नियम में शायद आप You होंगे, need the mercy of God. आपको प्रभु की दया की जरूरत है। You are in the New आप Testament. नए नियम में है इस You समय, need the mercy of आपको God. प्रभु की दया की जरूरत है। You are in the church age. आप इस समय कलीसिया के समय में हैं, You need the mercy of आपको God. प्रभु की दया की जरूरत है। In any age, कोई भी समय में man needs the mercy of और God. मनुष्यों को प्रभु की दया की जरूरत है। These lepers knew who Jesus और ये was. कुष्ठ रोगी लोगों को पता था कि यीशु कौन है। They heard about Jesus. उन लोगों ने यीशु के बारे में They सुना, heard about how big he उन is. लोगों ने सुना कि यीशु कितना महान They है, heard about his ministry. और उसके सेवकाई के बारे में They सुना, heard about his और miracle. उसके चमत्कारों के बारे They में heard सुना, about how powerful he और is. कितना सामर्थ्यशाली यीशु Oh, उन they लोगों knew that Jesus Christ can change their life. उन लोगों को पता था कि यीशु उन लोगों के जीवन को बदल सकता है। Even though they were far away from Jesus, अगर भी उन लोग यीशु से दूर थे, the Bible says बाइबल बताती है, they lifted up their voice. उन्होंने अपने आवाज को उठाया। You know why I lift up my क्या voice? आपको पता है मैं आवाज को क्यों उठा रहा Because हूं? I want every sinner to hear the voice of क्योंकि God. मैं चाहता हूँ सभी पापी लोग प्रभु की आवाज को सुने। You know why I lift up my क्या आपको voice? पता है मेरी आवाज को क्यों मैं उठाता हूँ? Because I want every saint to hear the word of क्योंकि God. मैं चाहता हूँ प्रभु के बच्चे लोग ताकि सभी लोग सुने। The Bible tells us बाइबल हमें बताती है that when we sing, जब हम पाप करते हैं, when we sing, जब हम देखते हैं, we need to lift up our voices हमारे आवाजों को हम उठाना चाहिए and sing the praises of और प्रभु God. की महिमा के लिए हमें गाना When we चाहिए। preach, जब हम प्रचार करते हैं, lift up our voice हमारी आवाज को उठाकर and preach the word of प्रभु God. के वचन को प्रचार करना That है, is what the word of God says. और वही परमेश्वर के वचन बताता And है। when we preach the word of जब हम प्रभु के God, वचन को प्रचार करते हैं, every sinner should hear, और जब पापी लोग सुनते हैं, every saint should और hear, सभी परमेश्वर के बच्चे को सुनना and a चाहिए, sinner should get और saved, पापी लोग उद्धार पाना and चाहिए, a saint should be और sanctified. जो परमेश्वर के बच्चे लोग उन लोग शुद्ध होना Here चाहिए। is a sinner who is calling upon Jesus Christ. और यहाँ पे पापी लोग जो प्रभु को पुकारते हैं इस समय, My dear friend, it's not by the works you do. मेरे प्रिय, ये जो आप काम करते हैं उसके द्वारा नहीं है, It's not by your law keeping. और आपके व्यवस्था पालन करने के It द्वारा is नहीं, purely by the mercy of God that one can be cleansed and be forgiven. लेकिन केवल ये यीशु मसीह की दया के अनुसार जो एक शुद्ध हो सकता है These व्यक्ति। 10 men lifted up their voice और ये 10 व्यक्ति लोग अपने आवाज को उठाया, and they cried out unto Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, And they said, और उन्होंने Jesus, कहा यीशु, how wonderful it is to lift up the name of Jesus कितना today. अद्भुत महान है जो हम यीशु के नाम को हम उठाते हैं। The Bible says there is no other name by which you can be saved on earth or in heaven. बाइबल में लिखा है ऐसा कोई नाम नहीं जिस नाम से हमें उद्धार मिलेंगे, There is only one name. केवल एक ही नाम है। The Bible says बाइबल बताती है that name is Jesus. वो नाम यीशु है। In the name of Jesus, यीशु के नाम से the devil trembles. और जो शैतान उन लोग हिल In जाते the हैं, name of Jesus, यीशु के नाम से, the saints become और sanctified. जब परमेश्वर के बच्चे लोग उन लोग शुद्ध हो In जाते the हैं name of Jesus, यीशु के नाम से, the devil run away. और शैतान भाग जाते In हैं the name of यीशु Jesus, के नाम से, there is healing. और चमत्कार है In the name of Jesus, यीशु के नाम से, the enemy's fear. और जो सारी चीजें डर जाते हैं In the name of Jesus, यीशु के नाम से, there is salvation. और उद्धार है, There is no other name और अलग कोई नाम नहीं by है which you can be saved जिस नाम से आपको उद्धार but the मिले, name of Jesus. ओनली यीशु के नाम है। And they call the right name. और उन्होंने सही नामों को They पुकारा did है, not call any other उन्होंने name, अलग दूसरा नाम को नहीं but they पुकारा, call the name of Jesus. लेकिन यीशु के नाम को If पुकारा you're not उन्होंने। sure how you can be forgiven, उन लोगों को पता नहीं कि अगर आपको मालूम नहीं कि किससे आप क्षमा होंगे, you don't have to go to the dictionary to find और out. आपको डिक्शनरी में जाने की जरूरत नहीं ढूंढने You के don't लिए, have to turn to the newspaper to find और आपको out. न्यूज़पेपर को खोलने की जरूरत नहीं है वहाँ You पर, don't have to switch on your television to find out. टीवी को खोलने की जरूरत नहीं ढूंढने के लिए, Perhaps in television you may not find. चाहे दूरदर्शन में आपको नहीं मिलेंगे, But there is one name that can save anybody. लेकिन एक नाम है जो आपको उद्धार को दे सकता है, The one name that can put the storm of your life and calm it off. और एक सा एक नाम है जो आपकी जीवन की आंधी तूफानों को रोक सकता It है, is the name of और Jesus. वो नाम यीशु है। The name of Jesus. यीशु मसीह के नाम, Everybody shout Jesus. सभी लोग कहें यीशु, Everybody say Jesus. सभी लोग कहें यीशु। There's only one name. केवल एक ही नाम है, You should not be ashamed of that name. आपको उस नाम से लज्जित नहीं होना There will चाहिए। be a day that the name of Jesus will be rare in your mouth. और ऐसा एक दिन आने वाला जो आपके मुंह में शब्द होने वाले There's हैं, a day that's going to come ऐसा दिन आने वाले हैं, where taking the name of Jesus will be banned completely. और ऐसा यीशु मसीह के नाम को लेने के लिए आपको नहीं मिलेगा तभी, People will say, don't carry that Bible. और लोग कहेंगे कि बाइबल आप मत लीजिए, Don't take the name of Jesus. यीशु
यीशु मसीह के नाम को मत लीजिए। If you're ashamed of the name Jesus today, अगर आप आज लज्जित हैं यीशु के नाम को लेने के up लिए, in heaven, God will be ashamed of you. और स्वर्ग में यीशु आपके ऊपर लज्जित करेंगे। I am not ashamed of the gospel of मैं Christ. परमेश्वर के सुसमाचार को लज्जित नहीं हूँ। I am not ashamed of the Lord Jesus मैं Christ. यीशु मसीह के लिए लज्जित नहीं हूँ। Somebody shout amen this कोई कहे morning. इस समय आमीन कहे। Somebody shout hallelujah this morning. हालेलुया, Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the only name that can sanctify यीशु मसीह एक anyone. नाम है जो आपको शुद्ध कर सकता है। Jesus is the only name that can forgive your sins. यीशु एक नाम है जो आपको क्षमा कर सकता है। Jesus is the only name that can give you और salvation यीशु this एक नाम morning. है जो आपको उद्धार मिल देता है। The 10 lepers, even though they were far away, और 10 कुष्ठी रोगी उन लोग दूर थे। they knew who can save them. उन लोग को पता था कि कौन उससे बचा They सकते knew हैं। who can sanctify उन लोग को them. मालूम था कि कौन उन लोग को शुद्ध कर They सकता है। knew who can heal उन them. लोग को मालूम था कि कौन उन लोग को चंगाई दे And सकता they है। called upon the और name, उन्हें यीशु के नाम को the पुकारा, right name, सही नाम को not the पुकारा, wrong name, गलत नाम को नहीं, not some idol और name, कोई मूर्ति को नाम नहीं, not the pastor's और name, जो गलत नाम है पास्टरों का not the नहीं, name of a temple, और मंदिरों का नाम नहीं, not the name of a और church, कलीसिया के नाम नहीं, but they called the name of God. लेकिन उन्होंने परमेश्वर के नाम को And the name पुकारा। of God is और परमेश्वर के नाम जो है Jesus. यीशु, Jesus. यीशु, Jesus means और यीशु का मतलब है Jehovah saves. यहोवा हमें बचाता I है। want to hear a loud amen this morning. मैं सुनना चाहता हूँ तुम लोग आमीन कहें जोर से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I'm excited. I don't know about you, but I'm very excited this मुझे morning. मालूम नहीं आपके बारे में, लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस समय। The Lord has done something in my life this morning. आज के सुबह में प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ किया है। I woke up in the morning, मैंने सुबह को उठा did not want to wake up. और मैं सुबह को उठना नहीं चाहता था I was fast asleep. और मैं सो गया तभी। But then the mobile rang, उस समय मोबाइल बजने लगा, which means my alarm rang. इसका मतलब मेरा अलार्म जो बज गया, My alarm is my wife. और जो मेरा अलार्म जो है मेरी And so पत्नी she है, woke us all up. और हम सभी को उठा दिया And then I woke up. और मैंने उठा Now I wanted to sleep more. और मैं ज्यादा सोना और चाहता But I था, was excited. लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड था Because it's कि Sunday. ये रविवार है It's the day I get to go to और church. यही दिन है जो मैं कलीसिया को जाता हूँ It's the day when God's people come और together. यही दिन है जो परमेश्वर के लोग आते हैं It's the day when we sing together. और यह दिन है जो हम एक साथ मिलकर गाते It's हैं। the day when we lift up a Bible ये दिन है जो हम बाइबल को उठाते हैं and hear the word of और हम God. वचन को सुनते हैं। You won't get such message in the Catholic और church. उस संदेश को आपको नहीं मिलेगा कैथलिक चर्च You में don't get such message in a Pentecostal और church. पेंटिकॉस्टल चर्च में आपको संदेश नहीं मिलेंगे You don't get message in a temple और आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे or in a mosque. और मास में भी आपको नहीं You मिलेंगे get such message only in the church of the Lord Jesus और Christ. यीशु मसीह कलीसिया में इसको इस प्रकार के संदेश आपको मिलेंगे। The church that believes in the word of और God. ऐसा जो कलीसिया जो परमेश्वर के वचन को विश्वास करते The हैं, church that believes there is no error in the word of जो God. कलीसिया जो विश्वास करते हैं कि बाइबल में कोई ऐसे एरर नहीं है। The Lord has done a new thing in my life this morning. और आज के समय प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ नया काम And किया I'm है excited to sing these praises to और God. इस समय प्रभु की महिमा गाने के लिए बहुत I'm एक्साइटेड हूँ। excited to preach the word of बहुत God. ही एक्साइटेड हूँ प्रभु के वचन प्रचार करने में। The word Jesus makes me excited. और जो परमेश्वर का जो नाम है वो मुझे एक्साइटेड बना देता है। Shah Rukh Khan does not get me excited. शाहरुख खान मुझे एक्साइटेड नहीं बनाता He है makes me to vomit. और मुझे वो वोमिट करने के लिए मजबूर कर Salman देता Khan है। does not makes me excited. सलमान खान मुझे एक्साइटेड नहीं बनाता है He makes me yak. और मुझे याक करने में There's मजबूर only करता है। one name that I get excited. केवल एक ही नाम है जो इससे मैं एक्साइटेड हो जाता There is हूँ only one name that's so powerful in this और एक ही earth. नाम है जो बहुत ही सामर्थ्यशाली There है is only one name that is powerful in और एक ही heaven. नाम है जो स्वर्ग में बहुत ही सामर्थ्यशाली है There is one name that everybody bows down. और एक ही नाम है जो सब नामों में झुकेंगे The angels bow down. और स्वर्गदूत झुकेंगे The elders bow और down. सभी एल्डर्स झुकते हैं, The saints bow down. सभी सेंट झुकते हैं The Satan bow down. और शैतान भी झुक जाते हैं Even the devils bow down. और शैतान की जो दूत है उन लोग भी झुक जाते हैं Only to the name Jesus. केवल यीशु के नाम में। Everybody bows before Jesus. सभी लोग यीशु के आगे झुकते हैं Because he's the one true God. कि वो सत्य परमेश्वर है। You may say, Pastor, you have no other message. आपको आप कहेंगे आपके पास दूसरा कोई संदेश नहीं है There is no greater message than the message Jesus. और यीशु के अलावा कोई अलग संदेश नहीं है। I don't care about what Paul says. मैं परवाह नहीं करता हूँ कि पौलुस क्या कहता I है don't care about what Isaiah says. और यशायाह क्या कहता है, मैं परवाह नहीं करता हूँ। All I care about is what they say about Jesus. मैं परवाह करता हूँ जो उन लोगों ने यीशु के बारे में कहा If है। Paul says about Jesus, पौलुस ने अगर यीशु के बारे में कहा that gets me excited. और वो मुझे एक्साइटेड बनाता है। If Isaiah talks about अगर Jesus, यशायाह यीशु के बारे में कहता है it gets me तो excited. मुझे एक्साइटेड बनाता है। If Peter talks about Jesus, अगर पतरस यीशु के बारे में बताता है that gets me और वो excited. मुझे एक्साइटेड बनाता है। The Bible says in book of Hebrews chapter और 1. इब्रानियों वचन 1 में कहता है In Hebrews chapter 1 verse number और 8, इब्रानियों अध्याय 1 में कहता है, the Bible says, बाइबल बताती है God
God the Father in heaven और परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में is है calling the Son और Jesus यीशु को पुकार रहे हैं as my God. और एक मेरा परमेश्वर के द्वारा The Father in heaven जो स्वर्गीय जो पिता है is calling the Lord Jesus और Christ यीशु मसीह को कह रहा है as my वो God. मेरा प्रभु है Because even the Father in heaven और knows स्वर्गीय पिता को भी पता है that Jesus Christ is कि God. यीशु मसीह परमेश्वर है Hallelujah. हालेलुया Peter called Jesus as God. पतरस ने यीशु को बताया कि यीशु परमेश्वर है Thomas said Jesus is God. थॉमस ने कहा कि यीशु परमेश्वर है Paul said Jesus is पौलुस God. ने कहा कि यीशु परमेश्वर है Timothy said Jesus is तीमुथियुस God. ने कहा कि यीशु परमेश्वर है Isaiah said Jesus is God. यशायाह ने कहा कि यीशु परमेश्वर है Everybody said Jesus is God. सभी ने कहा कि यीशु परमेश्वर है Even Satan says Jesus is और God. शैतान ने भी कहा कि यीशु परमेश्वर है I'm so excited about Jesus this और morning. इस समय मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ यीशु There के is बारे no में other God but Jesus. और कोई अलग भगवान है लेकिन केवल यीशु There's मसीह no other God who can save you but Jesus. अलग कोई प्रभु आपको बचा नहीं सकता है, लेकिन केवल यीशु आपको बचा There's no सकता other है God who can wash away your sin but Jesus. कोई भी प्रभु आपके पाप को शुद्ध नहीं कर सकता लेकिन Oh, यीशु how कर सकता है sweet is the name of Jesus. कितना अद्भुत मधुर नाम है यीशु How का mighty is the name of कितना Jesus. सामर्थ्यशाली नाम है यीशु का The lepers called the right और name. कुष्ठ रोगी ने सही नाम को पुकारा They called Jesus. उन्होंने कहा कि यीशु Jesus, यीशु Master, हे स्वामी have mercy on us. हम पर दया कर Oh, we need your mercy. आपको हमें आपकी दया की जरूरत है प्रभु We are useless. हम यूजलेस हैं We are cast out. हमें बाहर फेंका गया है Oh, we are sinful. हम पाप में भरा हुआ है Leprosy is all over us. देखो हमारे चारों तरफ कुष्ठ रोग हैं Nobody likes us. कोई भी हमें पसंद नहीं करते हैं Nobody wants us. कोई भी हमें नहीं चाहते We हैं are thrown out. हमें फेंका गया है Oh, बाहर Jesus, हे यीशु have mercy upon हमारे us. ऊपर दया कर Have mercy on us. हमारे ऊपर दया कर You know, we are trying to put a picture on us. हम हमारे ऊपर हम छवि को लगाना चाहते हैं The world thinks we are okay. और संसार सोचते हैं कि हम सही हैं The world thinks we are fine. संसार सोचते हैं कि हम सही हैं But Jesus, यीशु I have an issue within me. मेरे अंदर गलती है I'm struggling with sin मैं inside पाप से me. मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ People think I'm righteous, लोगों को लगता है कि मैं सही हूँ but I'm so unrighteous. लेकिन मैं अधर्मी हूँ People think I'm holy, लोग सोचते हैं कि मैं पवित्र हूँ but I'm so unholy. लेकिन मैं अपवित्र हूँ Jesus, यीशु have mercy on us. मेरे ऊपर दया कर हमारे ऊपर Today, if you will call upon Jesus अगर आज आप यीशु को and पुकारेंगे say, Oh, Jesus, अगर have आप mercy कहेंगे on me, यीशु हमारे ऊपर दया कर He will certainly have mercy. वो आपके ऊपर दया करेंगे He will never ignore your prayer. वो तुम्हारे प्रार्थनाओं को कभी इनकार नहीं He will करेंगे never ignore your cry. तुम्हारे रोना को वो कभी इग्नोर नहीं करेंगे If you call upon Him, He'll never cast you away. अगर आप पुकारेंगे यीशु मसीह को कभी बाहर नहीं फेंकेंगे They prayed the right prayer. उन्होंने सही प्रार्थना को किया Have mercy on us. हमारे ऊपर दया कर प्रभु Have mercy on हमारे us. ऊपर दया कर How wonderful this prayer is. कितना अद्भुत प्रार्थना है ये Have mercy on us. हमारे ऊपर दया कर You know why we say have mercy on us? क्या आपको पता है हम क्यों कहते हैं हमारे ऊपर दया When we कर realize that we are nothing, जब हम जान पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है when we realize that nothing we can do to inherit heaven, जब हम जानते हैं कि स्वर्ग को पाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते when हैं we realize that we are filled with horrible sin in our lives, जब हम जान पाते हैं कि हमारे अंदर पूरा पाप में भरा हुआ है when we realize that we are so weak and sick and we are so painful in our body, जब हम जान पाते हैं कि हम दुष्ट हैं हमारे शरीर में हम दुख भरे जिंदगी हम जी रहे हैं when our soul is wretched, when our heart is deceitful, जब हमारे जो प्राण है बहुत ही पाप भरा है और हमारे हृदय जो है बहुत ही दुष्ट है we come to understand our church will not save us. हम समझ पाते हैं कि हमारे कलीसिया आपको बचा नहीं We पाएंगे come to understand our pastors will not save हम us. समझ पाते हैं कि हमारे पासवान हमें बचा नहीं The सकता है church will not save us. कलीसिया हमें बचा नहीं सकता The है temple will not save us. मंदिर हमें बचा नहीं सकता है Religion will not save us. धर्म हमें बचा नहीं सकता And we है realize जब हम जान पाते हैं that only Jesus can save कि us. केवल यीशु मसीह हमें बचा And सकता that है is the time we call upon और Jesus. वही समय हम पुकारते हैं यीशु Have mercy on us. हमारे ऊपर दया कर Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया And the Bible says और बाइबल कहता है in verse number 14, और वचन 14 में and when he saw them, और उसने उन्हें देखकर कहा you know, when Jesus sees the people जब यीशु लोगों को देखता है who cries for mercy, और लोग उनको पुकारते हैं his heart melts. और उसके हृदय पिघल जाता है उस समय He moves with compassion और दया के करुणा से वो मूव हो जाते हैं उस समय and he moves towards us. और वो हमारे और बढ़ते हैं आगे The Bible says when he saw them, बाइबल में लिखा है जब उन्होंने देखा he said unto them, और यीशु ने उन लोगों से कहा Go show yourselves unto the priests. और जाओ याजकों को दिखाओ
And it came to pass और जाते हुए that as they went, और जब उन लोग जा रहे थे they were cleansed. वो उन सभी लोग शुद्ध हो गए। They were not cleansed because of what they did. और उन लोगों ने शुद्ध नहीं हुए क्योंकि उन लोगों ने कुछ किया है, They were cleansed because of what Christ did. लेकिन जो यीशु ने किया उसकी वजह से उन लोग शुद्ध हुए हैं। Jesus said, go. यीशु ने कहा कि जाओ, And the Bible says they were cleansed. और बाइबल में लिखा है कि उन लोग शुद्ध हो चुके थे। They were saved because they called upon the उन Lord. लोगों ने उद्धार पाया क्योंकि उन्होंने प्रभु को पुकारा है। The Bible says, बाइबल बताती है whosoever calleth upon the name of the Lord जो कोई भी यीशु के नाम को पुकारेंगे shall be कहा कि उन saved. लोग उद्धार को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। I thank God I called upon the Lord मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैंने प्रभु को पुकारा है and He saved me. और प्रभु ने मुझे बचाया। Hallelujah. हालेलुया। He put His eyes right into my heart. और यीशु ने अपने आंखों को मेरे हृदय में रखा He put His eyes right into my spirit. और मेरी आत्माओं में यीशु ने अपने आंखों को रखा He put His eyes right into my soul. और मेरे प्राणों की ओर यीशु ने देखा And He said, go thy way. और यीशु ने कहा कि तुम्हारे मार्ग में तुम चले जाओ And I was saved. और मैं उद्धार पाया I was forgiven. और मुझे क्षमा मिली। I didn't have to do मुझे anything. कुछ करने की जरूरत नहीं हुआ I didn't have to give a big offering. और बहुत ऑफरिंग ज्यादा देने की जरूरत नहीं हुआ Nothing, मुझे nothing. कुछ भी नहीं। No religious ceremonies. कोई भी मजहब मुझे बचाया नहीं, No religious work. कोई भी मजहब की काम, I just believed. लेकिन मैंने केवल विश्वास किया। I believe Jesus Christ is the one true मैंने God. विश्वास किया कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। I did not believe in death, burial and resurrection. मैंने केवल यीशु की पुनरुत्थान उसकी मृत्यु के ऊपर विश्वास नहीं किया। A lot of people are going to hell for believing in death, burial and बहुत resurrection. से लोग नर जा रहे हैं आज मृत्यु के ऊपर पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। 1 Corinthians chapter 15 is only a nutshell of the gospel. It is not the complete gospel. और जो पहला कुरिन्थियों 15 की जो शुभ समाचार है वो शुभ समाचार का एक हिस्सा है। That does not tell us who Jesus is. वो हमें नहीं बताता कि यीशु कौन है That verse does not tell us about the blood of Christ. और वो वचन प्रभु यीशु मसीह की लहू के बारे में नहीं There is बताता no है। forgiveness without the shed blood of the Lord Jesus बिना Christ. लहू के कोई भी पाप का क्षमा नहीं है। Nobody can be saved if you do not believe that Jesus Christ is the one true God who became अगर man. कोई भी उद्धार नहीं पाएंगे अगर आपको विश्वास नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर जो मनुष्य बना। Simply death, burial and resurrection does not save anybody. यीशु की मृत्यु और उसकी पुनरुत्थान आपको उद्धार नहीं देता The है। Jehovah's Witnesses believe in death, burial and resurrection. यहोवा विटनेसेस के लोग बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ The और Mormons पुनरुत्थान believe हुआ। in death, burial and resurrection. और मॉर्मन्स लोग भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर मृत्यु The के ऊपर। Catholics believe in death, burial and resurrection. और कैथोलिक लोग भी वही विश्वास करते हैं। But all these fellows have problem with that Jesus Christ is the one true God. लेकिन ये सभी लोगों के पास एक समस्या है कि यीशु मसीह परमेश्वर They कहते हैं। reject that the blood of Christ is divine and holy. उन लोग इनकार करते हैं कि यीशु मसीह जो लहू है वो डिवाइन है और पवित्र है। Death, burial and resurrection is not the gospel, not the complete यीशु gospel. मसीह की पुनरुत्थान और उसकी जो गाड़ा गया और जो पुनरुत्थान वो आपको उद्धार नहीं देगा। We have to believe that Jesus Christ is the one true God who became man. हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है जो मनुष्य बना And He took our sins upon Him and He died on the cross of Calvary. और हमारे पाप को लेकर कलवरी के क्रूस में वो मारा गया। By shedding His precious blood, अपने पवित्र लहू को बहाने के द्वारा was buried वो गाड़ा गया and rose again on the third तीसरा day. दिन वापस जीवित हुआ। God became man परमेश्वर ने मनुष्य बना so that man may become the sons of ताकि God. मनुष्य लोग प्रभु के संतान बन सके। He took our sins and died on the और cross हमारे पाप को लेकर क्रूस में मर गया that we might have everlasting ताकि life. हमारे पास अनंत जीवन हो सके। He shed His precious उन्होंने blood अपना लहू को बहाया that our sins can be washed कि away. हमारे पाप शुद्ध हो सके। He rose again on the third तीसरा दिन day वापस जी उठा that you and I can have a eternal hope. ताकि हमारे पास वो अनंत आशा हो That सके। is the gospel. और वही शुभ समाचार है And that is what God did when I called upon the और Lord. वही परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया जब मैंने यीशु को पुकारा। Oh, dear friend. हे मेरे प्रियो, The Lord Jesus told them, go. यीशु ने कहा उन लोगों से कि तुम लोग जाओ। Why did Jesus tell them, go show yourselves unto the क्यों priest? यीशु ने कहा कि तुम लोग जाकर याजक को दिखाओ? It's a type of baptism. और ये बपतिस्मा के जैसा एक टाइप है Because you got to show to the priest that you are cleansed right now. क्योंकि आपको दिखाने की जरूरत है कि याजकों की आप शुद्ध हैं इस When you समय। show to the priest you are cleansed, then only the priest will do something and send you inside the camp now. जब अपने आप को दिखाएंगे आप शुद्ध हो चुके हैं तभी याजक आपको अंदर भेज सकते हैं। Showing to the priest does not save you. और याजक को दिखाना मतलब ऐसा नहीं कि आप उद्धार पाए हैं। Jesus saves you. यीशु मसीह आपको बचाता है। But showing to the priest is an outward identification of what Christ did inside me. और याजक को दिखाना मतलब बाहरिकता एक उदाहरण है जो अंदर यीशु ने आपके जीवन में किया है। That is called baptism. उसको हम कहते हैं बपतिस्मा। If you are saved,
अगर आपने उद्धार पाया if है, God has saved अगर you, प्रभु ने आपको बचाया है, He forgave your sin, वो आपने पाप को क्षमा किया and if है, He made you the child of और आपको God, परमेश्वर अपने संतान बनाया and है, if you're sure that you're saved by the grace of God through faith, अगर आपको पता है आपने यीशु के अनुग्रह और विश्वास से उद्धार पाए then the हैं, Lord says, और यीशु कहेंगे now go and show the world. और कहेंगे कि दाओ तुम संसार को जाकर दिखाओ, Tell the whole world पूरे संसार को बताओ what I did to you inside. कि मैंने तुम्हारे अंदर क्या किया है, What did God do inside? परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या किया है, He regenerated us वो from हमें within. दोबारा से अंदर से जीवित किया है, He quickened our spirit. हमारे आत्मा को उसने जीवित He किया है, gave us a new और heart. हमें अलग हृदय को He दिया है, made us a child of और हमें God. परमेश्वर अपने संतान बनाया And the है। Lord says, go and show the world now. और यीशु कह रहा है कि इस समय तुम संसार को जाकर दिखाओ। How do I go and show the world? किस प्रकार से मैं जाकर संसार को दिखाऊंगा? By baptism. बपतिस्मा के द्वारा। Baptism does not save me. बपतिस्मा हमें बचाता नहीं, Baptism does not make me the child of God. बपतिस्मा मुझे परमेश्वर की संतान नहीं बनाता But है, baptism makes me to tell the world. लेकिन बपतिस्मा मुझे ये करता है कि ताकि मैं संसार को दिखा सकूं, Because I am saved. क्योंकि मैंने उद्धार पाया है, Because I am washed by the blood of Christ. क्योंकि मेरा पाप का शुद्ध हुआ है। I want the whole world to know मैं चाहता हूँ कि ताकि पूरे संसार जान that I सके am the child of कि God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ, That's why I am getting baptized. इसलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ। Some people get baptized before getting saved. बहुत से लोग बपतिस्मा लेते उद्धार पाने से पहले, Because pastors wants to baptize everybody today. क्योंकि पासवान आज सभी उनको बपतिस्मा देना It चाहते doesn't हैं। matter whether they are saved or not. कोई परवाह नहीं कि उन लोग उद्धार पाए हैं या फिर It doesn't नहीं, matter whether they know the gospel or not. परवाह नहीं कि उन लोगों को सुसमाचार पता है या फिर It नहीं, feels good to drown somebody inside the water और उसको अच्छा लगता है कि उन लोगों को पानी के अंदर डुबाने के लिए, and bring them out again. और लोगों को बाहर दोबारा वापस But लेके आते हैं। baptism does not save anybody. लेकिन बपतिस्मा आपको उद्धार नहीं देता। But a lot of people are baptized without getting saved. लेकिन बहुत से लोग आज बिना उद्धार के उन लोग बपतिस्मा ले रहे But हैं, then they hear the word of God later after some time. लेकिन कुछ दिन बाद उन लोग वचन को सुनते हैं And then they get saved. और लोगों को उद्धार मिलती है, But they are embarrassed to get baptized now. बाद में उन लोग लज्जित हो जाते हैं What बपतिस्मा will लेने के लिए। others say? बाकी लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, What will these people say? और ये लोग मुझे क्या कहेंगे? It doesn't matter what people say. कोई परवाह नहीं चाहे लोग क्या सोचे तुम्हारे All बारे में, what matters is what the Bible says. लेकिन आपको परवाह होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन क्या कहता I है। told you I was baptized 4 times before I got saved. मैंने आपको कहा कि उद्धार पाने से पहले मैं 4 बार बपतिस्मा ली। Every time I went inside the water, I came out wet. जब बार भी मैंने पानी के अंदर गया, मैं भीगा हुआ बदन को लेकर बाहर आया, Nothing good happened. कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे जीवन But में। 4 different pastors had 4 different pictures of me in 4 different water. लेकिन अलग अलग 4 पासवान के पास मेरा अलग अलग छवि है, But I got saved once लेकिन मैंने केवल एक ही बार उद्धार पाया, in the year 2000, और 2000 में January 3rd, 21st, और जनवरी का 31 को at 6:30 in the evening. और 6:30 बजे शाम के When I समय heard the gospel, जब मैंने शुभ समाचार को सुना, the Holy Ghost got hold of my heart. पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को पकड़ लिया। उस समय I understood who I was. मैंने समझा कि मैं कौन हूँ, I understood where I was going. और मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, I cried out unto और God. मैंने प्रभु से पुकारा। And God, I said, have mercy, O God. प्रभु से मैंने कहा मेरे ऊपर दया कर प्रभु, He saved me. और उसने मुझे He बचाया washed me. और मुझे शुद्ध किया He set me free. और मुझे आजाद किया। And then He told me, और उसने कहा मुझे go जाओ and show to the priest. और याजक को दिखाओ, जाकर Show to the world. संसार को जाकर दिखाओ। And I got baptized. और मैंने बपतिस्मा लिया। Baptism does not save me. बपतिस्मा मुझे नहीं बचाता, Jesus saved me. लेकिन यीशु मुझे बचाता है। That's what Jesus told these people. और यीशु ने ये लोगों को यही कहा, Now you are cleansed. इस समय तुम लोग शुद्ध हो चुके हैं, Go show to the priest. और याजक को जाकर तुम लोग दिखाओ। Baptism in verse number 14. और इस समय हम वचन 14 में हम देखेंगे, Verse number 14 says, लिखा है, and when he saw them, और जब उसने देखा, he said unto them, और उन लोगों को कहा, go show yourselves unto the priest. जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। And it came to pass और ये जाते हुए that as they went, जब वो लोग जा रहे थे, they were cleansed. वे शुद्ध हो गए। Hallelujah. हालेलुया। Just one word of Jesus. केवल यीशु मसीह के एक ही शब्द, Go. जाओ, Saved them. उन लोगों को बचा लिया। Amen. आमेन। Lord, I'm not worthy to have you into my house. प्रभु मेरे घर में आपको लेने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, But just say one word लेकिन केवल एक ही शब्द कहो प्रभु, and it's sufficient for us. और मेरे लिए बहुत ही जरूरतमंद है। Jesus said, go. यीशु ने कहा कि जाओ, They were cleansed. उन लोग शुद्ध हो गए उस समय। Hallelujah. हालेलुया। Look at verse number 15. वचन 15 में देखो, And one of them. और तब उनमें से एक, Too many people are ungrateful. बहुत से लोग अनग्रेटफुल हैं आज, Too many Christians are ungrateful. बहुत से लोग धन्यवाद नहीं देते आज, Too many Christians are sufficient only with salvation. बहुत से लोग मसीह लोग केवल उद्धार को लेकर उन लोग सफिशिएंट हैं आज, They are not grateful to the Lord all their life. उन लोग अपने जीवन को लेकर उन लोग प्रभु को धन्यवाद नहीं देते Look हैं। what the Bible says. देखो बाइबल क्या कहता है यहाँ पर, And one of them, और उनमें से एक which he saw that he was healed, ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, turned back और वापस से गया, and with a loud voice और ऊंचे शब्द से
They were not saying, "Oh तेरी स्तुति." No. "Oh तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना." Amen. आमेन। You know what they did? आपको पता है उन लोगों ने क्या किया? The Bible says, बाइबल बताती है with a loud voice, ऊंचे शब्द से glorified God. उसका बड़ाई करते हुए आया। Hallelujah. हालेलुया। You know why we come to the church? क्या आपको पता है हम कलीसिया को क्यों आते हैं? To glorify Him, प्रभु की महिमा करने के to लिए, worship Him. प्रभु की आराधना करने के You लिए। know why sometime in the middle I come in? क्या आपको पता है बीच में मैं क्यों आता हूँ यहाँ पर? Because God tells me it's not reaching up to heaven. क्योंकि प्रभु मुझे पता था कि ये स्वर्ग की ओर नहीं जा रहे हैं। इन लोग क्या समझ रहा है पता नहीं. इन लोगों को क्या लग रहा है मुझे पता नहीं। What are they doing? उन लोग क्या कर रहे हैं? Why is the mic so far? क्यों माइक उन लोग का बहुत ही दूर है? Why can't they put it here? क्या उन लोग यहाँ पर रह के गीत नहीं गा सकते हैं? Lift up their voice क्यों उन लोग आवाज को नहीं उठाते हैं? and sing the praises of God. प्रभु की स्तुति नहीं गाते हैं? No. When you worship God, नहीं, जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, when you glorify जब आप प्रभु God, की बड़ाई करते हैं, when you show your gratefulness to जब God, अपने ग्रेटफुलनेस को आप प्रभु को दिखाते हैं, oh, you need to celebrate. आपको सेलिब्रेट करना You know, चाहिए। when you go and watch cricket match, जब क्रिकेट मैच आप देखते हैं जाकर, you don't do Kohli ने सिक्सर मारा. You don't do that. आप उस प्रकार से नहीं करते हैं जब कोहली सिक्सर मारता है। What do you do when Kohli hits a six? जब विराट कोहली सिक्स मारते हैं उस समय क्या करते हैं? Hey, you shout. आप चिल्लाते हैं। Amen. आमीन। That is called celebration. उसको हम सेलिब्रेशन कहते हैं। That is called celebration. और उसको हम सेलिब्रेशन कहते हैं। We come in the house to celebrate. हम परमेश्वर की भवन में आते हैं सेलिब्रेट We करने के don't लिए। come to mourn. हम वहाँ पर दुख मनाने आते We नहीं। don't come to sleep. हम सोने के लिए नहीं आते We हैं। don't come to be sad. हम दुखी होने के लिए नहीं आते We हैं। come to celebrate the Lord हम यीशु को हम सेलिब्रेट करने के लिए because आते He has हैं। done something great in our life. क्योंकि उसने मेरे जीवन में कुछ अद्भुत किया है। हालेलुया। We celebrate it. हम सेलिब्रेट करते हैं। And this one man और एक व्यक्ति ने got excited. और बहुत ही एक्साइटेड हुआ। The Bible says with a loud voice, बाइबल बताते हैं ऊंचे स्वर में, शब्द में, he glorified और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ आया। God. और उसने परमेश्वर की बड़ाई की। He knew who God was. उसको पता था कि प्रभु कौन है। He glorified Jesus. उसने प्रभु की महिमा की। Verse number 16. और वचन 16 में And fell down on his face at his feet. और लिखा है, और यीशु के पांवों पे मुंह के बल गिरकर He glorified God. और उसने प्रभु की महिमा की। Who is that God? और कौन है वो प्रभु? The Bible says, who is that God? बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर कौन He है। fell down at his feet. और लिखा कि अपने मुंह के बल गिर गया यीशु At के God's शरणों में। feet. और वो यीशु के शरणों में, God's feet. परमेश्वर के पांवों पर, He fell down on his face at his feet, और अपने मुंह के बल गिरकर giving him thanks. और धन्यवाद करने लगा। And he was a Samaritan. और वो समरी था। He was not a Jew. और वो यहूदी नहीं था। He was a Samaritan. और वो समरिया था। Jesus did not come only for the Jew. He came for the sins of the whole world. यीशु मसीह केवल यहूदी लोगों के लिए ना कि पूरे संसार के पाप के लिए आया। He did not die only for the Jew. He died for the whole world. केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं मरा, लेकिन पूरे संसार के लिए मरा। For God so loved not only the Jew but the whole world. परमेश्वर ने केवल यहूदियों को प्यार नहीं किया, लेकिन पूरे संसार को प्यार For किया। God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करे नष्ट ना हो, लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त Are करेगा। you okay with my voice today? क्या मेरी आवाज को लेकर सही हैं? Am I loud enough today? क्या मैं बहुत ही लाउड हूँ आज? If I am too loud, rapture is coming soon. अगर मैं बहुत ही लाउड हूँ, रैप्चर जल्दी आने वाला If है। you don't like my voice, you may not like rapture. अगर आप मेरी आवाज को पसंद नहीं करते, आपको रैप्चर पसंद नहीं होंगे। My voice is nothing, but the voice of angel is something greater. और मेरी आवाज कुछ नहीं, लेकिन स्वर्ग के जो दूत है उन लोग की आवाज बहुत ही The अद्भुत है। trump of God will be 100,000 million trillion times louder than my voice. और मेरी आवाज से भी परमेश्वर की जो तुरी है वो ज्यादा और ज्यादा लाउड होंगे। Even the dead in the grave will rise up. और जो मरे हुए लोग भी उन लोग उठ जाएंगे। Even the deaf on the road will hear the voice of और जो God. बहरा है उन लोग भी प्रभु की आवाज को सुनेंगे। And the Lord will say, और प्रभु कहेंगे, come up hither. और तुम लोग ऊपर आ जाओ। He will not say go. He is going to say come. और नहीं कहेंगे कि तुम लोग जाओ, वो कहेंगे कि ऊपर आ जाओ। One day he said go. और एक दिन उसने कहा कि तुम जाओ, At the rapture he says come. लेकिन उठाने के दिन के समय प्रभु I कहेंगे am ऊपर so आओ। मैं excited. बहुत ही एक्साइटेड हूँ। I am so excited about rapture और today. मैं रैप्चर के दिन के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। But I am not waiting for rapture. लेकिन मैं रैप्चर के लिए वेट नहीं कर रहा I हूँ। am celebrating Christ today. मैं आज प्रभु की सेलिब्रेट कर रहा हूँ। Even if rapture doesn't happen, अगर रैप्चर नहीं होंगे, and even if I
I go through the अगर मैं tribulation, ट्रिबुलेशन की ओर जाऊंगा, I will celebrate Christ through and through. मैं यीशु मसीह की आराधना करते रहूंगा। I know that I won't go through tribulation. मुझे पता है कि मैं तारना के दिन में नहीं I जाऊंगा। know that I will be raptured. मुझे पता है कि मेरा रैप्चर होंगे, But I'm not going to wait to celebrate till then. लेकिन उस दिन तक मैं सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपेक्षा नहीं I'm करूंगा। going to celebrate Christ right now लेकिन इसी समय में प्रभु की with a सेलिब्रेट loud करूंगा voice और पूरे ऊंचे स्वर से, and give him the glory और उसको महिमा देते हुए, and give him the और thanks. उसको धन्यवाद देते हुए, For he alone deserves क्योंकि everything. वही योग्य है सब चीजों का। Oh, he was not a Jew. और वो केवल यहूदियों के लिए He नहीं, was a Samaritan. और वो समरिया था, He was a Gentile. और वो अन्य जाति था। Verse number 17. वचन 17 में, And Jesus answering said, और इस पर यीशु ने कहा, were there not 10 cleansed? क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? How can I hear only one shouting amen? तो फिर मैं कैसे एक ही जनों का आमीन सुन सकता हूँ? Were there not 70 in the church? क्या आपको 70 जन थे वहाँ पर How कलीसिया can I पर? hear only 5 saying hallelujah? कैसे मैं सुन सकता केवल 5 लोग हालेलुया कह रहे हैं? Are you grateful to the Lord this morning? क्या सुबह में प्रभु की ओर ग्रेटफुल है इस Will समय? you lift up your voice this morning? क्या आप इस समय प्रभु की ओर आवाज को Will उठाएंगे? you glorify the God this morning? क्या आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं सुबह में? If so, say amen. तो आप कहेंगे आमीन, Shout a hallelujah. हालेलुया कहेंगे सभी लोग Oh चिल्लाइए। man, my legs are keep going up. I'm so excited. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मेरे पाँव ऊपर जा रहे हैं। When I बार-बार। get excited, even in my sleep, I'm shooting the football. और जब मैं बहुत ही एक्साइटेड होता हूँ, मैं बहुत ही फुटबॉल मारता हूँ उस I don't know समय। if you know if it happens in your dreams. मुझे नहीं मालूम कि आपके अगर ड्रीम में अगर ऐसा कुछ हुआ सपना Sometimes में। I'm dreaming बहुत से समय मैं सपना देखता in हूँ my bed और मेरे बिस्तर पे, and I feel like I'm playing और football मुझे लगता है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ उस and समय, my legs go up. और मेरे पाँव ऊपर जाता है। Suddenly I realize I'm still sleeping on the और मैं bed. देखता हूँ कि मैं अभी भी सो रहा हूँ बिस्तर पर, Today I'm not dreaming. और आज मैं सपना नहीं देख रहा I'm हूँ, speaking about the fact. मैं सच्चाई के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। He's coming in the cloud वो बादलों में आने वाले हैं, and he's saying, "Come up वो either." कहेंगे ऊपर आ जाओ, But I'm not going to glorify only then. और मैं केवल उसी समय ग्लोरीफाई नहीं I'm करूंगा, glorifying right now. मैं इस समय परमेश्वर की बड़ाई कर रहा I'm हूँ, going to celebrate right इस समय now. मैं सेलिब्रेट कर रहा I'm हूँ, going to celebrate tomorrow. और कल को मैं सेलिब्रेट I'm करूंगा, going to sing His glory every और हर day. दिन मैं उसकी महिमा गाऊंगा। But Jesus is going to ask the question, लेकिन यीशु एक प्रश्न पूछेंगे, where are the 9? और बाकी लोग कहाँ पे हैं? 9 जन, Where are the 9? और बाकी 9 जन कहाँ पर है? I woke up late और today. मैंने बहुत ही देर से उठा मैं आज, Where are the 9? और बाकी 9 जन कहाँ पर My है? children are sick मेरे today. बच्चे लोग बीमार हैं आज, Where are the 9? और बाकी 9 जन कहाँ पर है? My auntie has come from Bombay मेरे today. आंटी बॉम्बे से आई है, Where are the 9? और बाकी 9 जन कहाँ पर I है? forgot to press my clothes today. और मेरे कपड़ों को मैंने प्रेस करना भूल गया, Where are the 9? और बाकी 9 जन कहाँ पर है? Oh, my back is hurting मेरे today. पीछे बहुत ही दर्द कर रहा है, Where are the 9? बाकी 9 जन कहाँ पर है? Oh, I woke up late और मैं today. आज बहुत ही लेट उठा, Where are the 9? बाकी 9 जन कहाँ पर है? Where are the 9? बाकी 9 जन कहाँ पर है? Are you the one? क्या आप उनमें से एक हैं, Are you that one who came to glorify the Lord या Jesus फिर आप today? उस ऐसा व्यक्ति हैं जो प्रभु की महिमा करने के लिए आया? Hallelujah. हालेलुया। Look at your neighbor and say, well done. अपने आप को देख कर कहे कि वेल डन, Say, well done. Well done for coming. एक दूसरे को कहें वेल डन फॉर कमिंग, Amen. आमेन। Well done for coming. The Bible says, बाइबल बताती है, but where are the 9? और बाकी 9 जन कहाँ पर है? Can I tell you something क्या मैं different? आपको कुछ कहूँगा इस समय? It's possible to be here physically. और शरीर में यहाँ पर आना बहुत ही संभव है, You could be far away right now. शायद इस समय बहुत ही दूर है, You may be here with your body. शायद इस समय शरीर को लेकर यहाँ पर आप मौजूद हैं। Are you here mentally, क्या आप इस समय मेंटली यहाँ पर हैं, emotionally, इमोशनली यहाँ पर हैं, spiritually? और आत्मिक तौर से भी यहाँ पर आप क्या हैं? And the Lord is saying, where are the 9? और यीशु कह रहा है बाकी 9 जन कहाँ पर हैं? I pray and I believe you are the one who came back to glorify the और मैं Lord. विश्वास करता हूँ कि आप वही उनमें से एक है जो प्रभु की महिमा देने के लिए वापस से आया। Amen. आमेन। There are not found that return to give glory to God save this stranger. और लिखा है क्या 10 शुद्ध में से फिर एक वो ही ने कहा है वहाँ पर। Look at verse number 19. और वचन 19 में देखो, You know, this guy couldn't stop worshiping God. और ये जो व्यक्ति है उन्होंने प्रभु की आराधना करना नहीं त्यागा। This man couldn't stop praising and worshiping God. प्रभु की आराधना स्तुति करना उसने बंद नहीं कर सका। The Lord had to say, come on man, get up. प्रभु को कहना मजबूर हुआ कि उठ जाओ। Hallelujah. हालेलुया। Get up. उठो, Get up. उठो।
He's saying, no, Lord, I want to worship you. लेकिन वो कह रहा है नहीं, मैं आपकी आराधना करना चाहता I हूँ, want to be at your feet. मैं आपकी शरणों में रहना I चाहता want to हूँ, give you thanks. मैं आपको धन्यवाद देना चाहता I हूँ, want to glorify your मैं name. आपकी नाम को बड़ाई करना Oh चाहता God, हूँ। let me be there at your feet. हे प्रभु, मुझे आपके शरणों में होने दे इस And समय, let me worship you, oh और God. मुझे इस समय आपकी आराधना Oh करने दे God, I प्रभु। come to प्रभु, मैं you इस समय आपके शरणों में आता and I हूँ worship और मैं आपकी you. आराधना करता हूँ प्रभु। Don't make me to wake और up. मुझे उठने के लिए मत दे Don't प्रभु, make me to get और up. मुझे उठने के लिए मत दे What you प्रभु। have done is amazing. और क्या आपने जो मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत है, What you have done is greater than जो anything. आपने मेरे जीवन में सबसे अद्भुत है। Oh God, thank you. हे प्रभु, आपको धन्यवाद हो, I worship you. मैं आपकी आराधना करता हूँ प्रभु। And the Lord says, और यीशु इस समय कहेंगे, arise, उठो go thy way. और तुम्हारे मार्ग में तुम जाओ। Get up today. और आज तुम उठो, Everybody get up. सभी लोग उठो, Stand up. सभी लोग खड़े हो जाओ, Get up. सभी लोग उठो। The Lord is saying, arise. प्रभु ने कह रहा है कि सभी लोग उठ जाओ, And the Lord says, go thy way. और यीशु कह रहा है तुम्हारे मार्ग में तुम जाओ। Thy faith had made thee whole. देखा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, Not your law, तुम्हारे व्यवस्था ने नहीं, not your offering, तुम्हारे ऑफरिंग ने नहीं, not your denomination, तुम्हारे डिनोमिनेशन संस्था ने नहीं, not your dispensation, तुम्हारे डिस्पेंसेशन ने नहीं, but your faith लेकिन has made तुम्हारे thee whole. विश्वास ने तुझे चंगा किया है। The just shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Oh dear friend, हे मेरे प्रियो, there's a day that's going to come. और ऐसा एक दिन आने वाले हैं, The Lord is saying, arise, और यीशु कहेंगे कि तुम उठ जाओ, and we will all arise, और हम सभी लोग उठ जाएंगे उस and we समय, will all go. और हम सभी लोग जाएंगे। We have been at the feet of Christ today. और आज हम सभी लोग प्रभु की शरण में We've हैं, been worshiping Him today. हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, We've been thanking Him today. और हमने प्रभु को धन्यवाद दिया Now the लगातार। Lord says, arise, और इस समय प्रभु कह रहा है कि तुम इस समय उठो, go thy way. तुम्हारे मार्ग में तुम चले जाओ, Tell the world संसार को कहो how wonderful Jesus is. कितना यीशु मसीह महान है, How great Jesus is. यीशु मसीह कितना अद्भुत है, What great things He has done for you. कितना अद्भुत काम मेरे ये जीवन में यीशु ने किया है। Go tell it on the mountains. जाओ, तुम जाकर लोगों से कहो, Go tell it in the village. और गांव में जाकर कहो, Go जाओ, tell everyone about Jesus. सबों को यीशु के बारे में बताओ। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, I pray this morning मैं आज के सुबह प्रार्थना you करता will हूँ bless your children, O ताकि आप God. आपके बच्चों को ब्लेस करे पिता। I thank you for your loving kindness. आपकी दया के लिए पिता को Thank धन्यवाद, you for saving us. हमें बचाने के लिए आपको धन्यवाद Thank you पिता, for making us your children. आपकी संतान बनाने के लिए आपको God, धन्यवाद। if there is anybody here अगर कोई यहाँ पर है पिता प्रभु not जी, sure of their उन लोगों salvation, को मालूम नहीं उन लोगों के उद्धार के बारे and में, if you have spoken to them today, अगर आज आपने उन लोगों के जीवन में बात किया है, save them, O उन लोगों को आप God. बचाइए प्रभु, May they call upon you. ताकि उन लोगों के ऊपर पुकारे। And I pray that you will send everybody who is your children here और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबों को भेजिए पिता जो आपके बच्चे हैं, to go and show to the world ताकि उन लोग संसार को जाके दिखा सके what you have done in their जो कुछ भी life. आपने उन लोगों के जीवन में किया है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen and amen. आमीन, And all God's people said, आमीन। Amen.